शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। In Acts chapter 2 verse 1 through 4. प्रेरितों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर के 4 तक। And when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। It is said कहा गया है that is most of the churches around the world or the church world संसार की कई कलीसियां today, the fire of God is seldom ever mentioned. परमेश्वर की इस आग के बारे में वहां नहीं बताया जाता है। You have an opportunity. आपको यह मौका दिया गया है। Don't be contented. आप तृप्त ना हो जाएं। Don't just be satisfied with just the praise and just the worship. You got to enter into a worship that will activate you. आपको सिर्फ स्तुति आराधना में तृप्त नहीं होना है, आपको परमेश्वर की आराधना को सच्चाई से करना है। When you come to God's house, you got to be humble. जब आप परमेश्वर के घराने में आते हो तो आपको नम्र Teachable. होना है, सीखने लायक हो। Whoever the one that shows you the direction, be teachable, accept. जो कोई आपको मार्गदर्शन दिखाता है आप उसको स्वीकार करें। In your house, you want to sit on the sofa, you want to sit on the table. That's your problem. That is how you can be comfortable. आपके घर में आप सोफा पर बैठना चाहते हो, टेबल पर बैठना चाहते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है आप ऐसा करते हो। But when you come to the house of God, लेकिन जब परमेश्वर के घर में the Holy Spirit is not out of order, is in order. पवित्र आत्मा क्रम से चलता है और हमें ठीक रास्ते पर ले चलता है। And with that order, He can flow in you, He can use you, He can activate you. If your heart is broken, यदि आपका हृदय टूटा हुआ है, पवित्र आत्मा सही तरीके से आपके अंदर आता है और आपको सही मार्ग पर वह लेकर के जा सकता है। if ever you want the fire of God in your life, यदि आपको परमेश्वर की आग की जरूरत है, you got to be broken. आपका अंदर टूटा हुआ होना चाहिए। You got to sincerely seek Him. आपको सच्चे दिल से उसकी खोज करनी है, Coming before God. परमेश्वर के सम्मुख में आकर। So that is why in most church, the fire of God is very seldom mentioned. कई कलीसियाओं में परमेश्वर की इस आग के बारे में नहीं बताया गया है। The results in the believer's life, no fire means a powerless life. इसका परिणाम क्या है कि एक विश्वासी के जीवन में आग नहीं है, इसलिए वह सफलता पूर्वक नहीं जी सकता है। Read according to the Bible. And when the day of Pentecost has fully come, they were all with one accord in one place. जब पिंतेकुस्त का दिन आया, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और एक मन होकर ठहर गए। You are in one place. आज आप एक स्थान में हो, You should be in one accord. आपको एक मन होना चाहिए So that the holy fire can come upon you. ताकि पवित्र आग आपके ऊपर आ सके। But if you just come together just like this and like that,
and no fire is powerless life. यदि आप मनमानी आओगे और जाओगे, वहां कोई आग नहीं रहेगा, कोई सामर्थ्य नहीं मिलेगा आपको। This is the opposite of what God is speaking about. यह उसका विपरीत है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। You know, you can tell me, but in my house, pastor, oh God, pastor, in my house I spend time, I weep and I cry. But then how come here you don't weep and cry? आप कहोगे कि अरे पासवान, आप जानते हो मैं अपने घर में रोता हूँ, बहुत विलाप करता हूँ, और यहाँ आकर तो ऐसा नहीं करते हो आप। You are a con man. आप एक शारीरिक व्यक्ति हो। If the presence of God is with you, wherever you are, He will activate you. यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, वह आपको क्रियाशील बनाएगा। This is opposite of the way of Jesus. यीशु के मार्ग का यह विपरीत है। What Jesus intended for you to be is different. यीशु जो आपके लिए चाहता है वह बहुत ही भिन्न है। Jesus wanted our life to be full of vigor. यीशु चाहता है कि हमारा life, excitement, excellence. हमारा जीवन बहुत ही उत्साहित हो। A life full of excellence. हमारा जीवन बहुत ही उत्तम हो। And boldness. और बहुत ही साहसी हो हम। And a life more abundantly. और बहुतायत का जीवन हमें प्राप्त हो। That's what God wants for you. यही परमेश्वर आपके लिए चाहता है। Most of the churches, I do not know how to say, मुझे पता नहीं, कई कलीसियाओं में, When I say most of the churches, is including us also, कई कलीसिया माने हम लोग भी उसमें शामिल हैं, a pathetic shape. वे सुरक्षित नहीं दिखते हैं। And has fulfilled what Paul, the apostle, has said. प्रेरित पौलुस ने जो कहा है, That in the last days there would be many that have a form of godliness. अंतिम दिन में बहुत से दैविक रूप को धारण कर लेंगे, But deny the power thereof, the fire of God thereof. जो परमेश्वर का आग है, सामर्थ है, उसका इनकार करेंगे। Don't be in this church and then have the fire die in your life. इस कलीसिया में रहकर आप परमेश्वर के आग से वंचित ना हो जाइए। All you do is just your work, and you just come on a Sunday. Hey, your fire is dead, man. Do something about it. आप हर दिन काम करते हो, हमेशा काम करते हो, रविवार को सिर्फ यहाँ आते हो, आपके जीवन में आग बिल्कुल नहीं है। You gotta get the fire going in you. आपके अंदर वह परमेश्वर का आग होना चाहिए। By denying the power of God, परमेश्वर के सामर्थ का इनकार ना करें। they are in a sense denying the fire of God. सचमुच आप उसका इनकार ही कर रहे हैं। They are saying, कहते हैं, I don't need your fire in my life. I don't need the baptism of the Holy Ghost. मुझे उस आग की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, कहते हैं। Our church program do not have room for that. हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं हो सकता है। You got to do something about it. इसके लिए आपको कुछ करना होगा। The church world has come to a place where we have gone back to the book of Judges. कलीसिया वापस उस न्यायों के पुस्तक की स्थिति में चला गया है, where every man does what is right in his own sight. वहां लिखा है कि हर एक मनुष्य अपनी मर्जी से जीवन बिताने लगा। You think the way you worship is okay. आप सोचते हो कि आप जैसे आराधना करते हो वो सही है। 10:30 sharp. 10:30 बजे ठीक। You come at 11 o'clock for what? Go home. 11 बजे आप यहाँ क्यों आते हो? वापस घर चले जाओ। You already consider the Holy Spirit dead. आप सोचते कि पवित्र आत्मा मरा हुआ है। When you come, जब आप आते हो, you wait upon the Lord, not the Lord wait upon you. Hallelujah. आप परमेश्वर के लिए इंतजार करिए, परमेश्वर आपके लिए इंतजार ना करे। Hello, church. You better change, आप कलीसिया के लोग हो। Don't become like people, their own sweet time.
Oh, come to God. Oh, expect God to answer them. Those are the dead churches. ऐसे लोगों के समान ना बन जाएं जो अपनी मनमानी जीवन बिताते हैं। जब जरूरत है परमेश्वर के पास जाते हैं और वे सोचते हैं कि परमेश्वर उनका They are a form of godliness. परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। You better think about what you are doing. आप जो कर रहे हो उसके बारे में विचार करिए। You don't think that God is accepting what you are doing. आप यह नहीं सोचते हो कि क्या परमेश्वर आपको स्वीकार कर रहा You है। are thinking what I'm doing is I'm right. मैं जो करता हूँ वह सही है, आप सोचते हो। In the book of Judges, every man think that they are doing is they are right. न्यायियों की पुस्तक में हर एक व्यक्ति ने ऐसा ही सोचा कि वो जो करते हैं वो सही है। It's time to change, church. समय आ गया है बदलने का। It's time to change our ways, our attitude. You don't waste your time. If you seek for God, God is there. आप अपने मार्ग को बदलिए। यदि आप परमेश्वर को ढूंढोगे वो आपके पास आएगा। So please, people of God, you got to, you know, I don't care the church is big or small. मैं ये चिंता नहीं करता कि कलीसिया छोटी है। But what I care मैं क्या चिंता करता हूँ, is the people be on fire. लोग आग से भरे हुए हो, On fire for God. परमेश्वर के लिए आग से भर And if they're जाए। on fire for God, जब आप परमेश्वर के लिए भरे होगा आग they से, have to multiply. उन्हें गिनती में बढ़ना ही होगा। Because they're not on fire, they become like that. क्योंकि वे आग से भरे नहीं हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। I'm not here for the souls only, I'm here for you. मैं सिर्फ आत्माओं को जीतना नहीं चाहता, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। For you, so that you be on fire and you win the lost, and then the lost begin to be found, then they become disciples. आपके लिए यहाँ आया हूँ ताकि आप आग से भर जाएं और फिर आप आत्माओं को खोज करके लेकर आओगे और वे यहाँ पर चेले बन What's the जाएंगे। use of you bringing another soul but you not on fire? जब आप दूसरी आत्माओं को लेकर आते हैं और आप आग से नहीं भरे हो, In the house, in the community, among your friends, they must see the fire. कि मित्रों के बीच में उन लोगों को आग को In देखना your है। office, they must see the something about you. आपके दफ्तर में लोग देखें कि आप बिल्कुल अलग हैं। If they don't see anything, जब वे कुछ न देखेंगे, that means you fail. इसका मतलब आप असफल हो गए हो। That means you do not seek God. इसका मतलब कि आप परमेश्वर की खोज नहीं करते। You seek God only in the church, something is wrong. यदि आप केवल कलीसिया में परमेश्वर को खोजते हो तो कोई गड़बड़ी है आपके अंदर। You seek God as an individual, then you come together, the fire of the Holy Spirit will come. जब आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को खोजोगे और फिर एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पर आओगे तो परमेश्वर का आग आपको भर देगा। But I still believe मैं अभी भी विश्वास करता हूँ, there is still a church, फिर भी एक कलीसिया है, a church that is in the last days, अंतिम दिन की कलीसिया। that still gets excited वह उत्साहित हो जाता है about the things of God. परमेश्वर की बातों के Are विषय। you going to be that church? क्या आप ऐसी कलीसिया बनना Are चाहते? you going to be that church? क्या आप ऐसी कलीसिया? Then get your life right. तो अपने जीवन को सुधार लो। Get your lives right. आपके जीवन को सुधार Get लो। the fear of the Lord inside your life. परमेश्वर का भय आपके अंदर आ जाए। Get the holiness into your life. आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए। Get the character of Christ into your life. मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाए। Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाइए। Pray. Tongue talking people, it's okay. प्रार्थना करिए और अन्य भाषा को बोलिए। You got to speak in tongue. आपको अन्य भाषा बोलना है। Even if you don't understand, you pray in the Spirit. यदि आप नहीं समझते हो फिर भी आपको अन्य भाषा में बोलना है। And the more you begin to pray, and then suddenly understanding comes. जितना ज्यादा आप आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे फिर अचानक आपको समझ में But आएगा। if you don't step out by faith, if you don't step out by faith, if you don't speak, if you're not gonna, if you're gonna go into your office and then there's so many people gonna attack you, you go to the bathroom, you pray in tongue. आप दफ्तर में जाते हो, वहां पर बहुत सारे लोग आपके विरोध में आ जाते हैं, आप वहां बाथरूम में जा सकते हैं और अन्य भाषा में बोल सकते हैं वहां पर। You pray in the Spirit and you go out and then you share, then you speak, then you get the power of the Lord will influence the rest of the people. आप बाहर आकर के फिर उनसे बातचीत करते हो तो परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य लोगों पर प्रभाव डालेगा। A church that
isn't afraid of the fire. एक कलीसिया जो उस आग से डरती नहीं है, A church that get excited when they read the word of John the Baptist. कलीसिया जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के वचन को पढ़कर उत्साहित हो जाती है। Matthew chapter 3 verse 11. मत्ती अध्याय 3 वचन 11। He says like this. I indeed baptize you with water unto repentance, but there is one coming after me. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Our God is a God of fire. हमारा परमेश्वर आग का परमेश्वर है। The word of God calls him a consuming fire. वचन में लिखा है कि वह भस्म करने वाली आग है। Hello? Number one, पहली बात, to have fire, there must be a kindle. आग को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, There must be fuel या फिर तेल होना चाहिए, or ignite the fire. उस आग को जलाने के लिए। So on the day of Pentecost, 120 that were there. पिंतेकुस्त के दिन में 120 लोग थे। Hey, people of God, I don't just believe only in what the Bible says, 120 down there and finish down there. I believe down here, 300, 400, 100. If we are in one mind, one accord, God's holy fire, consuming fire can come down. मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 120 लोग हैं वही प्राप्त करेंगे, नहीं, यहाँ 300, 400 जितने लोग भी हैं, एक मन होंगे तो परमेश्वर का आग हम पर उतरेगा। 120 were there in one mind and one accord. 120 लोग ऊपरी कोठरी में थे, एक मन होकर एक जगह में इकट्ठे हुए। Ready to be burned. वे तैयार थे जलने के Are you लिए। ready to be burned? क्या आप तैयार हैं जलने When के the Holy लिए? Ghost fell, they were enveloped in the fire. जब पवित्र आत्मा उतरा, वे लोग आग में भर गए थे। Oh, that fire was wild. वो जो आग है वो बहुत ही विशाल थी, Out of control fire. उनके नियंत्रण से बाहर थी, But it was of the Holy Ghost. लेकिन वो पवित्र आत्मा की आग थी। You know the holy fire when it comes upon you. Kiralabashandalabata, kipikete. जब पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर आता है तो आप अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते। It transforms you. वह आपको पूरी तरह रूपांतरित कर देता है। It consumes all the filthiness in you, आपके अंदर जितनी गंदगी है उस सबको दूर कर देता है, making you holy unto Him. आपको पवित्र बना देता है। All the wrong thoughts burning down. सारे जो बुरे विचार हैं वो जल जाते हैं, And only the holy fire in you. और अब केवल पवित्र आग आपके अंदर रहेगा। Now think, how righteous are you now? अभी जरा सोच के देखिए कि आप कितने धर्मी हो। How many of you are thinking what is right in your own eyes? कितने लोग सोचते हैं कि आपके मन के अनुसार वही ठीक है। Oh, can I do this or can I do that? Oh, come on. If you are with the Holy Spirit in you, oh, you have no need to worry because He will guide you. यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, वह आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। He is disciplined वह अनुशासित है and He follows the rules. और वह नियम के अनुसार चलता है। And the church that follows Him follows the rules. कलीसिया जो पवित्र आत्मा का अनुकरण करते हैं वो नियम के अनुसार चलते हैं। Is disciplined. वह अनुशासित है, Working together. एक साथ मिलकर काम करते हैं। And when Peter speak, everybody listen. और जब पतरस बोला तो सारे लोग उसको सुनते हैं। Yeah, when the man of God speak, then you go back. But this one, no, this one, yeah, so yeah. यहाँ जब परमेश्वर का व्यक्ति बोलता है तो आप अनसुने कर देते हो। Why don't you submit to the word of God? आप परमेश्वर के वचन के सम्मुख समर्पित हो जाइए। Why are you not listening? आप क्यों सुनते नहीं हो? Why are you not practicing?
क्यों इसका अभ्यास नहीं करते? Can you see how stubborn we become? हम कितने जिद्दी बन जाते हैं। How can God use you? कैसे परमेश्वर आपका उपयोग करेगा? Of course, God wants to use everybody. परमेश्वर आप में से हर एक का इस्तेमाल करना चाहता है। If only we allow Him to use us, then He will help us to change. यदि हम उसको अनुमति देते हैं, वो हमारे अंदर आकर हमें बदल देता है। Number 2, दूसरी बात, the fire of God illuminates. परमेश्वर का आग हमें जलाता है। What do people see when they look at us? जब लोग हमें देखते हैं, वह क्या देखते हैं? What do people see when they look in us? जब लोग हमें देखते हैं, वह क्या देखते हैं? When people see, when they look at us, what do they see? जब लोग हमें देखें, तो उन्हें क्या दिखाई देता है? They should see, because the fire is in us. हमारे अंदर का आग उन्हें दिखाई देना चाहिए। And because the fire is in us, the love and the power. क्योंकि आग हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य भी हमारे अंदर है। And if they can see the love and the power of God in us, or they should illuminate us. जब लोग हमें देखेंगे, वे हमारे अंदर सामर्थ्य और प्रेम को देखेंगे। You know, when people look in us, then they look, the fire is in us, the love of God is in us, the power of God in us. These things illuminate us. जब लोग हमें देखते हैं, हमारे अंदर के आग को, हमारे अंदर के उस सामर्थ्य को और प्रेम को, यह सब हमें ज्योतिर्मय कर देता है। And how do you have the love of God? और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे आएगा? By drawing that love from Him. परमेश्वर से ही आप उसको प्राप्त कर सकते हो। How you get the power of God? परमेश्वर का सामर्थ्य आपको कैसे मिलेगा? By coming in one accord. एक मन होकर जब आप इकट्ठे होते हो, And then the power of God will just pow in you. और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आके भर And देता है। these things will illuminate us among the others. और यह सब जब हमारे अंदर रहेगा, हम दूसरों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देंगे। Moses was attracted to the burning bush. जलती हुई झाड़ी के प्रति मूसा आकर्षित हो गया। Number 3, तीसरी बात, the fire of God is not quenched. परमेश्वर की आग को बुझा नहीं सकते हैं। The fire of God is not quenched. Leviticus chapter 6, verse 13. लय व्यवस्था अध्याय 6 वचन 13। God associate the fire with the altar. परमेश्वर उस आग को वेदी के साथ जोड़ता है। At an altar of prayer. प्रार्थना की वेदी। You may be on your last mile. हो सकता है कि अपने जीवन के अंतिम समय पर पहुंच गए हो, But if you will kneel at the altar of prayer of God, यदि आप परमेश्वर की वेदी के सम्मुख घुटने टेकोगे, God will reignite the fire within you. परमेश्वर आपके अंदर उस आग को जलने देगा, दोबारा जलने देगा। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है, तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।